آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ تمام کی تشریف آوری، آپ تمام کی موجودگی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسے میں شرکت کی، اور یقیناً آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کھنڈوا میں اور مدھیہ پردیش میں انشاءاللہ تعالی ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 6 جولائی کو بلدیہ کے میونسپل الیکشن کی حق رائے دہی کا پولنگ کا دن ہے، اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے 11 امیدوار میدان میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میئر کی سیٹ پر بھی مجلس نے اپنا امیدوار اتارا ہے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے، اور 6 جولائی کے دن میری آپ تمام سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا قیام مدھیہ پردیش میں اس لیے کیا گیا تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے ووٹوں سے، اپنی محبتوں سے آپ اس پردیش میں، کھنڈوا میں، برہانپور میں، بھوپال میں، ان مقامات پر، سیندھوا میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کی اور آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے، اور میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ کسی قوم کے لیے 50 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ نے، ہمارے بزرگوں نے 50 سال مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا، ہم نے زیادہ تر کانگریس کا ساتھ دیا، یہ سمجھ کر کہ کانگریس ہمارے مسائل کو حل کرے گی۔ ہم نے کانگریس کے حق میں ووٹ دیا یہ امید پر کہ ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت ہوگی۔ ہم نے یہ سوچ کر کانگریس پارٹی کی تائید کی کہ وہ فرقہ پرستی کے زہر کو بڑھنے سے روکے گی۔ آپ کے ہمارے بزرگوں نے مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا، یہ سوچ کر کہ ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، ہمارے نوجوان نسل کے لیے کالجز کا انتظام کیا جائے گا، پولیس کے ظلم سے ان کو بچایا جائے گا، جھوٹے مقدمات میں ان کو ڈال کر جیل جانے سے ان کو بچایا جائے گا، ان کے گھروں کی حفاظت ہوگی۔ میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر آپ خود غور کریے، سوچئے، اور اس کے بعد ایک اچھا فیصلہ لیجئے۔ جب آپ نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا، تب بھی بھاجپا کامیاب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات آپ سے عرض کرنے آیا ہے، اور آپ کو یہ سمجھانے آیا ہے کہ یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ میں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں کسی پردیش میں۔ ہاں، ہم میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ ہم متحد اگر ہوتے ہیں اور متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو کھنڈوا کی بلدیہ میں یا مدھیہ پردیش کی ویدھان سبھا میں بھیجا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے مسائل کی آواز اور آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، تاکہ آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز بلند ہو، مظلوموں کی فریاد
जालिमों के सामने कर उनके जुल्म को रोकने की कोशिश करना है। और याद रखिए, जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है, लोकतंत्र आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को, प्रत्याशी को, उम्मीदवारों को कामयाब कर सके। कल तक मजलिस मध्य प्रदेश में आपके दरमियान में नहीं थी, तो आपको हालत मजबूरी में वो बूढ़ी कांग्रेस का साथ देना पड़ता था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश की सियासत को वो कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं चलने देगी। मुझे पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक तीसरे विकल्प का यहां पर एक बहुत बड़ा स्कोप है, मैदान है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत में एक तीसरी ताकत बनकर उभरेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आज आप खुद मेरी इन बातों पर गौर करिए और उस सुनने के बाद एक अच्छा फैसला आप लीजिए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आप पहली जमात से 12वीं जमात में कितने बच्चे स्कूल में जेर तालीम हैं, तो गवर्नमेंट के आदादो शुमार और डेटा ये बताता है कि 1,60,00,000 के करीब बच्चे और बच्चियां फर्स्ट क्लास से 12वीं जमात में एनरोल्ड हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के कमलनाथ से कि आप मुझ पर तो उंगलियां उठाते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। भारत में अगर किसी सियासतदान पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है। आप और इल्जाम लगाओ, बल्कि इल्जाम लगाने की आपकी मशीनरी में और इजाफा कर दो। मगर मैं जो सवाल कर रहा हूं, अगर मध्य प्रदेश में पहली जमात से 12वीं जमात तक 1,60,00,000 बच्चे एनरोल्ड हैं, तो बताओ उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम अकलियत का कितना परसेंटेज है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें मुसलमान का परसेंटेज कितना निकलता है। आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि मुस्लिम एनरोलमेंट अगर 7% आबादी है मध्य प्रदेश में, तो बमुश्किल 4% भी मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां पहलवी जमात से 12वीं जमात में पढ़ते हैं। क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? किसने आपसे कहा था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चों को तालीम मत दिलाओ? किसने आपसे कहा था कि मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल को मत खोलो? किसने आपसे कहा था कि अगर हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कॉलेजेस ना खोलें? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये मसाइल हैं, जज्बाती तकारीर और नारों से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जमीन पर नाइंसाफी का खात्मा हो, तो नौजवानों मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी, फेरोज लाला और डॉक्टर गफ्फार कादरी मध्य प्रदेश को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम यहां पर आए हैं, नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तुम्हारा हक दिलाने के लिए हम आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आपको अपना हिस्सा मिले। मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, और जब तक अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को सियासत में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे और आवाम के दरमियान में आते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मध्य प्रदेश में अपर प्राइमरी में आप देख लीजिए कितने मुसलमान हैं। 4% हमारे बच्चे और बच्चियां एनरोल्ड हैं अपर प्राइमरी में। सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ 3.7 है, हायर एंड सेकेंडरी लेवल पर 3.44 है। और अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 21,80,000 के करीब
बच्चे तालीम हासिल करते 21,80,000 हायर एजुकेशन में डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। बताओ मुसलमानों का कितना तनासुब है? सिर्फ 44,290 है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती है, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान गरीब है, पढ़ता नहीं है। अरे अगर मैं गरीब हूं इसलिए गरीब हूं कि तुमने मुझे मेरा गरीबी मेरा मुकद्दर बनाकर रख दिया। अगर मैं गरीब हूं और मेरे बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ते इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम हमारी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते, तुम उनकी तरक्की के दुश्मन हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन जाए। तुम उसको वही टायर का पंक्चर बनाकर देखना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ये पैगाम देने आया है कि टायर का पंक्चर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा हौसला है, ये हमारा ख्वाब है। और जब हम ये बात को बयान करते हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण दे रही है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं। मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दिलों में जो जज्बात है उसको अपनी जबान से बयान करता हूं। अगर कोई सोया हुआ है तो मैं उसको जगाता हूं। अगर किसी को अपना हक नहीं मालूम तो उसके हक की बात